Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of SSC CGA 2024 exam of 24 September थर्ड शिफ्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ GKGS। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम GKGS पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आपके आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी को डिस्कस करेंगे। एक दो प्रश्न जो कि छूट जाएंगे तो हम उन्हें PDF में जो कि शामिल करके आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और भी क्वेश्चन के लिए। तो बाकी चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच बर्थडे, हुज बर्थडे सॉरी। तो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। Teacher Day in India is celebrated on 5th September to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was the first Vice President of India and the second President of India and educationist at heart. In 2020, the theme of Teacher Day is Teachers Leading in Crisis, Remaining the Futures. Globally, Teachers Day is celebrated on 5 October in India. It's celebrated on 5th September since 1962. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी इज अ फेमस डांस ऑफ विच प्लेस। तो आंध्र प्रदेश जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। कुशेलेवर्स refers to group of dancer who travels to the village to perform. Kuchipudi originate from the Kushalpuri village of Andhra Pradesh. Vijayanagar and Golconda rulers patronized the art of dance. The famous dance Tarangam, where the dance performed with a brass plate with her feet and water pot on the head. Stories from Bhagavad Puran on the secular themes. Lasya यानी soft element and तांडव यानी hard element are reported in कुचिपुड़ी डांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गंगूबाई हंगल was an Indian singer of Hindustani classical tradition who was awarded the Sangeet Nagar Academy Award in 1973. She belongs to which of the following musical घराना। तो आपका किराना घराना जो कि राइट आंसर हो जाएगा। किराना घराना इज द नेम ऑफ दिस घराना ऑफ म्यूजिक ड्राइव फ्रॉम किराना और किराना अ टाउन एंड तहसील इन शामली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट्स बर्थ प्लेस ऑफ अब्दुल करीब खां हु वाज वन ऑफ द most important musician of the Gharana and the Hindustani music in the general in the 12th century. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच स्टेडियम वाज द फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 प्लेड। तो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2023 concluded with चेन्नई सुपर किंग लिफ्टिंग द ट्रॉफी आफ्टर defending champions Gujarat Titans at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The Indian Premier League यानी IPL 2023 was the 16th edition of the Professional 2020 Cricket League established by the Board of Control for Cricket in BCCI in India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका who has written the book One Among You। तो the book One Among You is written by M.K. Stalin. This book is first volume of his autobiography who described the initial 23 year of his life जो कि आपका 1952 to 1976 तक जो कि आपका था। तो M.K. स्टैलिन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच मूवमेंट वाज विड्रॉ बाय महात्मा गांधी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट महात्मा गांधी विड्रॉड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन February 12, 1922. On February 4, 1922, a clash took place at Chauri Chaura in the Gorakhpur district of Uttar Pradesh. In this clash, the police fired on the protesters involved in the non-cooperation movements. In retaliation, the protesters attacked a police station and set it on fire. 22 policemen and 3 civilians were killed in this incident. Gandhiji felt that the rebellion was going astray and had lost in its non-violent nature. Gandhiji appealed to the Indian people to end all resistance and also fasted. Many weak personalities disagreed with this decision of Gandhiji. Siya Das and Motilal Nehru, angry with the decision of Gandhiji, laid the foundation of Swaraj Party in January 1923.
चलिए नेक्स्ट है आपका इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस। तो आपका 1991 में जो कि एक पॉलिसी आपका आया था। इन द ईयर ऑफ 1991 इंडिया हैड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ड्यू टू विच इट टूक अ लोन फ्रॉम IMF on certain conditions which led to economic reforms in India. This paved the way of liberalization, privatization and globalization in India. Liberalization की बात कर ले तो it stand for reducing the share and control of the government in economy and opening it up to private entities by eliminating the inspector raj, loosening the license policy etc. प्राइवेटाइजेशन की बात कर ले तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन अंडर विच फॉरेन डायरेक्ट investment private companies enter the market which increase competition with ultimately led to an increase in the quality of product and also reduce reflection. Globalization की बात कर ले टेक्नोलॉजी एंड स्किल came in India from other part of the world as FDI branch out and export made it possible for Indian goods to reach abroad. It is only the result of privatization. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ GNP इन नेशनल इनकम यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। GNP इज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय कंट्री फार्म्स एंड सिटीजन इन ईयर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर फॉर्म्ड। GNP की फार्मूला की बात कर ले तो GNP इक्वल टू GDP प्लस इनकम मेड बाय द फार्म्स यानी सिटीजन्स एब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन फार्म्स यानी नेशनल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ IGOT यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग रिलेटेड टू। तो आपका कोविड-19 से रिलेटेड था तो कोविड-19 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। IGOT इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च फॉर training frontline workers during the COVID-19 pandemic. It aims to provide doctors, nurses, paramedical staff, technicians, and the other health workers with the skill and knowledge required for the management of the COVID-19. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर आर द आर्टिकल रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट। तो आपका आर्टिकल 79 to 122 जो कि रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 organs of parliament President, Lok Sabha and Raj Sabha. Article 79 to 122 under Part 5 of the Constitution describe the formation, structure, duration, official, producer, privileges and power of the Parliament. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन रिलेटेड जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसे भी जान लेते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन की बात करें इन 1956 हैज़ क्लासिफाइड industries on the basis of ownership as per the industrial policy relation 1956 industry were classified into 3 category on the basis of ownership। तो वो कौन कौन से 3 कैटेगरी। तो आपका फर्स्ट है आपका द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड इंडस्ट्री विच could be set up and developed exclusively as public sector enterprises. The second category is included industry which would be set up as both public sector enterprises and the private sector enterprises with the private sector being given a secondary role. Third category की बात करें include all industry other than those specified and the above categories and was open to the private sector. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द स्विज ओपन बैडमिंटन 2022 विनर। तो PV सिंधु जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्विज ओपन बैडमिंटन 2022 की बात कर ले PV सिंधु बीट्स बुशनन ओंगबमरूपन टू विन वुमेन्स सिंगल टाइटल। PV सिंधु ऑन द वुमेन्स सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग बुशनन ओंगबमरूपन ऑफ थाईलैंड इन द फाइनल। The 2022 Swiss Open, officially known as Yonex Swiss Open 2022 for a sponsorship reason, was a badminton tournament that took place from 22 to 27 March at St. Jaxele in Basel, Switzerland, with a total prize of $180,000. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इज। तो आपका 1.64% जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट
of India according to 2011 census is 1.64%. The change in the population living in a particular area between 2 points of time in each called population growth. Its rate is expressed in percentage. The census was introduced in 1872 under the British Viceroy Lord Mayo. It helped in the formulating new policies, government program for the upliftment of area of improvement in the community. The first sunrise census in India was conducted in 1881. Since 1901, it has been taking place after every decade. Census 2011 is the 15th census and the 7th after independence. The slogan of census 2011 is our census our future. टोटल पॉपुलेशन की बात कर ले तो 121 करोड़ 8,54,977 एंड सेक्स रेशियो की पर फीमेल पर 1000 मेल की बात कर ले तो 943. डेंसिटी आपका 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. वही इन्फेंट मोटिलिटी रेट की बात कर ले 2006 से तो आपका 57 पर 1000 लिव बर्ड जो कि आपका है. मेटरनल मोटिलिटी रेट की बात कर ले तो 407 पर लाख लाइव बर्ड्स. लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री की बात कर ले तो 74.04%. हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात कर ले तो आपका 94% जो कि आपका केरला का है. लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात कर ले तो बिहार का है आपका कितना 61.8%. वहीं हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर ले तो केरला का है आपका 92.1%. वहीं लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की बात कर ले तो बिहार का है आपका 51.5%. हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में आपका है 19 करोड़ 98 लाख 12,341. लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम का आपका 6,10,577. वहीं आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि बिहार का है आपका कितना 1106. लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर ले तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है आपका 17. हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात कर ले तो केरला का है आपका 1084. वहीं आप लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात कर ले तो आपका हरियाणा का है जो कि आपका 879 है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ आपका बात कर ले तो 63.5 ईयर्स का है आपका और मेल का है आपका 62.6 ईयर्स एंड फीमेल का है आपका 64.2 ईयर्स. वहीं रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन की बात कर ले तो आपका 17.7% है. वहीं और कुछ मेन पॉइंट्स की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश जो कि आपका हैज़ द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड नागालैंड हैज़ द लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन. मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन एंड पंजाब हैज़ द लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर डज नॉट बिलोंग्स टू द गुर्जारा प्रतिहारा डेंसिटी. तो आपका भारत भट्ट फर्स्ट जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा. वहीं बात करें इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुर्जारा प्रतिहार डेंसिटी की तो आपका हरिश्चंद्र जो कि आपका फाउंडर था. वहीं आपका नागभट्ट फर्स्ट जो कि आपका ही एक्सपेंडेड द किंगडम टू ग्वालियर बारूच एंड मालवा. अवनी वाज द कैपिटल ऑफ द हिज किंगडम. उनके समय में जो कि आपका अवनी जो कि कैपिटल था किंगडम था. वहीं बात कर ले वशिष्ठ राज की तो कैप्चर कनौज फ्रॉम किंग धर्मपाल ऑफ पाल डेंसिटी. वहीं आपका नागभट्ट सेकेंड की बात करें तो ही इज़ नॉन फॉर द रिबिल्डिंग द सोमनाथ टेम्पल इन 815 AD. मिहिर भोज की बात करें तो ही एज्यूम द टाइटल ऑफ आदिवरहा एंड बिल्ड द टेली मंदिर इन ग्वालियर. वहीं महेंद्र पाल फर्स्ट की बात कर ले तो आपका सन ऑफ मिहिर भोज फर्स्ट जो कि आपका बेटा थे. वहीं राजा भोज की सेकेंड जो कि आपका थे. वहीं बात कर ले गुजराती प्रतिहाराज की तो गुजराती प्रतिहार आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेंसिटी ऑफ मेडिवल इंडिया. द ओरिजिन ऑफ गुजरात इज नॉट सर्टेन. वहीं बात करें द डेंसिटी ऑफ गुजरात प्रतिहाराज वाज फाउंडेड बाय द हरिश्चंद्र इन द 6th century AD. मिहिर भोज वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहार डेंसिटी. ही रिकैप्चर कनौज इन 836 एंड रीनेम्ड द कैपिटल फॉर अबाउट 100 years. तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका थर्ड शिफ्ट के जो कि जीके जीएस के रहे. बाकी लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं. क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था. लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये आपका स्टूडेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. बाकी और भी इसका जो कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सभी शिफ्टों का. तो वहाँ से ज्वाइन होकर भी रीड आउट कर सकते हैं आप और भी क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे उसमें. बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.